آغاز بڑی خبر سے۔ وفاقی کابینہ نے توانائی کی بچت کے لیے فوری اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ملک میں تمام شادی ہال رات 10 بجے بند ہوں گے۔ اس کے علاوہ مارکیٹیں رات 8:30 بجے بند ہوں گی۔ وفاقی کابینہ نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق تمام سرکاری اداروں میں بجلی کے استعمال میں 30% کمی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان اقدامات سے 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ وفاقی وزراء نے نیوز کانفرنس کی۔ عام استعمال والے بلب پر پابندی، غیر معیاری پنکھوں پر 30% ڈیوٹی لگے گی۔ ملک میں تمام شادی ہال رات 10 بجے بند ہوں گے۔ یہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں وفاقی کابینہ کی جانب سے، جن کے مطابق مارکیٹیں رات 8:30 بجے بند ہوں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ نمبر 1، ملک میں بھر میں موجود تمام شادی ہال جو ہیں 10 بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ مارکیٹیں جو ہیں وہ 8:30 بجے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ اس پالیسی سے شادی ہال، ریسٹورنٹس اور مارکیٹوں کے یہ اگر ٹائم آبزرو ہوں تو 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ بجلی سے چلنے والے غیر مؤثر پنکھے 1 جولائی یعنی 1 جولائی 2030 کے بعد فیکٹریوں میں تیار نہیں کیے جا سکیں گے۔ مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مقرر کر دی گئی ہیں۔ نون لیگ کی صدر شہباز شریف نے مریم نواز کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے پارٹی صدر کے فیصلے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی دستخط سے جاری کیا گیا یہ نوٹیفیکیشن، جس کے مطابق سینئر نائب صدر کے عہدے پر مریم نواز کو فائز کر دیا گیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے پارٹی صدر کے فیصلے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا اور نوٹیفیکیشن پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے دستخط سے جاری ہوا۔ شہباز شریف نے مریم نواز شریف کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بھی مقرر کر دیا اور پارٹی کی تنظیم نو کی ذمہ داری مریم نواز شریف کو سونپ دی گئی۔ مریم نواز شریف تمام سطحوں پر پارٹی کو ری آرگنائز کریں گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں 8 ماہ کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمت میں 45% اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر تیار۔ ذرائع کے مطابق وائٹ پیپر میں کہا گیا عام آدمی کی مشکلات میں پہلے سے 200% اضافہ ہوا۔ حکومت کی ناکام معاشی پالیسیز نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی۔ ڈالر کی دستیابی میں کمی اور قیمت میں اضافے سے درآمدات میں بھی کمی آئی۔ وائٹ پیپر کے مطابق ناکام معاشی پالیسیز سے پاکستان کی انڈسٹری کو سخت دھچکا لگا۔ پچھلے 8 ماہ میں لاکھوں ہنرمند افراد بے روزگار ہوئے۔ حکومت کے غیر دانشمندانہ اقدامات سے زراعت کو بھی نقصان پہنچا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کی جیبوں پر اضافی بوجھ پڑا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آج وائٹ پیپر جاری کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی دوبارہ انتخابات کی ضد پوری نہیں ہوگی۔ عمران خان کی سیاست ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ جھوٹ، نفرت، جلاؤ گھراؤ کی سیاست ملک کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ضد کا اس کا علی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے ہیں۔ ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے، پارلیمان میں بیٹھے، اپنا صحیح کردار ادا کرے۔ 6 مہینے اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو کیا قیامت سے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ اسمبلی کو سے استعفیٰ دیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے اسپیکر کے پاس آنا تو پھر اس کا وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جیسے لوگ اور پروفیسر خٹک غائب ہو جاتے ہیں۔ تو باقی میں آپ کو لسٹ سنا سکتا ہوں ان کا بیچارے جو ہے جو پاؤ پکڑے ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کا کہ ہمارا استعفیٰ نہ وصول کیا۔ ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں۔ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ہمارا بہت سے ایشوز اور آپس میں اختلافات رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے ضرور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے میں یہ نہ ڈھونڈے کہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری نہیں کرتے۔ بلاول ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کے اہم اجلاس کی اندرونی کہانی۔ بلدیاتی انتخابات میں تحریک انصاف کی جیت کا راستہ روکنا چاہیے۔ نون لیگی وفد کی رائے، پی ٹی آئی میں اتحادی جماعتیں آپس میں اختلافات ختم کریں ورنہ وفاقی حکومت پر اثر پڑے گا۔ وفاقی وزراء کی رائے، موجودہ حلقہ بندیوں کے ساتھ ہم الیکشن لڑنے کی
पोजीशन में नहीं है। MKM का इजलास में मौक़िफ़ मौजूदा हल्का बंदियों से हमारे सियासी मुस्तकबिल को नुकसान होगा। MKM का ये मौक़िफ़ है और हल्का बंदियों की तब्दीली अब मुमकिन नहीं है। छेड़छाड़ की गई तो मामला अदालत पहुंच जाएगा। PP कानूनी टीम की राय। MKM का कहना है कि हमारा मसला कानूनी नहीं सियासी है। पार्लियामान में ताकत है, आप नई हल्का बंदियां कर लें, मामला अदालत जाकर फिर लटक गया है। PP कानूनी टीम का जवाब, आप बड़े हैं, हमारे लिए कोई रास्ता तलाश करें। गवर्नर सिंध की आसिफ अली जरदारी से दरख्वास्त, MKM से पुराना ताल्लुक चाहता हूं, MKM मजबूत हो। आसिफ अली जरदारी की जानिब से ऐसा कहा गया। KM अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, मजीद क्या गुफ्तगू हुई और क्या कहा गया? जी बिल्कुल, बिलावल हाउस में इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ था उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। और इस वक्त जो इजलास हुआ था उसमें ये बात की गई थी कि कराची के बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उसमें तहरीक इंसाफ की जो जीत का रास्ता है वो रोकने की जरूरत है। और नून लीगी जो रहनुमा थे उनकी जानिब से ये कहा गया था कि कोशिश करें कि जो है आपसी इख्तिलाफात को फौरी तौर पर खत्म करें और किसी और के लिए रास्ता न बनाए, क्योंकि इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और 15 तारीख को ये इंतखाबात होंगे। ताहम इसमें हल्का बंदियों के मामला जो है उसको फौरी तौर पर हल करें और आपसी इख्तिलाफात खत्म करें, क्योंकि अगर आपसी इख्तिलाफात रहे तो इस दौरान जो है मुमकिन हो सकता है कि तहरीक इंसाफ का रास्ता खुले या फिर उसकी पोजीशन में कुछ जो है वो इसमें बल्दियाती इंतखाबात में जीत सके। ताहम पीपुल्स पार्टी इस वक्त काफी बेहतरीन पोजीशन में है और MKM भी उसका साथ दे ताकि दोनों जमातें मिलकर जो है बल्दियाती इंतखाबात में करें। जबकि MKM की जानिब से ये कहा गया था कि इस वक्त जो पोजीशन है हल्का बंदियों की उसमें MKM काफी कमजोर पोजीशन पे है और जो वोटर लिस्टें हैं उनमें भी कुछ तब्दीली मुमकिन है। ताहम जो है ये कहा गया था कि फौरी तौर पर ये मुमकिन नहीं है कि हल्का बंदियां तब्दील की जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनका भी एक जो है मौक़िफ़ लेना लाजमी होता है और वही जो है हल्का बंदियां बनाते हैं, तो इस वक्त मुमकिन नहीं है। आज ये जो अंदरूनी कहानी है इस इजलास की उसमें खुसूसन तहरीक इंसाफ के रास्ते रोकने पर भी जो है कहा गया था और आपसी जो इख्तिलाफात है उनको खत्म करने को कहा गया, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाए। 1.5 लाख अभी भी बरकरार है। इस सिलसिले में जो है अब इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम तर रहनुमा जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। आज गवर्नर सिंध जो है वो भी इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। MKM पाकिस्तान ने जनरल वर्कर्स इजलास आज तलब कर लिया। बिलावल हाउस इजलास में होने वाले फैसलों की रोशनी में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। MKM पाकिस्तान का जनरल वर्कर्स इजलास आज तलब कर लिया गया है और इतलात के मुताबिक बिलावल हाउस इजलास में होने वाले फैसलों पर आइंदा लाएअमल तय किया जाएगा। इस अहम इजलास को आज तलब किया गया है। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी शुरका से खिताब करेंगे। ये मुंह और मुर्गी का गोश्त। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। रावलपिंडी में मुर्गी के गोश्त की कीमत 565 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 550 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि रावलपिंडी में अंडों की कीमत 280 रुपए फी दर्जन हो गई। लाहौर में अंडे 274 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त होने लगे। ये मुंह और मुर्गी का गोश्त। मुर्गी के कीमत में होशरुबा इजाफा होने लगा। ये मुंह और मुर्गी का गोश्त। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 565 और लाहौर में 550 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फीड्स बंदिश को पोल्ट्री के रेट बढ़ने की वजह करार दे दिया। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम बारहा गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, कॉस्ट ऑफ लिविंग को यूटिलिटीज के बिल्कुल नीचे लाया जाए, ताकि आम आदमी के लिए आसानियाँ और जो परचेजिंग पावर है वो बेहतर हो, ताकि वो अपने वसाइल के अंदर अपने अखराजात को पूरा कर सके और अच्छी चीज जा सके। पोल्ट्री डीलर्स भी मुर्गी की कीमत बढ़ने से परेशान नजर आ रहे हैं और एहतजाज का अंदिया दे दिया है। अंडों की कीमत भी आसमान से बातें कर रही है। रावलपिंडी में अंडों की कीमत 280 और लाहौर में 274 रुपए दर्जन तक पहुंच गई। दूसरी जानिब कोयटा में खुला आटा 130 रुपए किलो तक पहुंच गया है। महकमा खुराक की जानिब से लगाए जाने वाले सस्ते आटे के पॉइंट्स गैर फाल हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों को आटा नहीं मिल रहा। मजीद मोहम्मद अकरम से। कोयटा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए और 50 किलो वाला थैला 6600 रुपए तक पहुंच गया, जबकि खुला आटा 130 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ता आटा नायाब हो गया। कीमतों में बेदरेक इजाफे पर कोयटा के शहरी बेहद परेशान हैं। हम लोग एक हफ्ते से आ रहे, जुम्मे के दिन भी आया नहीं मिला,
हफ्ते के दिन भी आया नहीं था, इतवार के दिन छुट्टी था, आज वापस हम लोग 6 बजे से इंतजार है। बच्चे छोटे बच्चे हैं और आटा भी नहीं मिल रहा है, क्या करें हम लोग, किधर जाएं? हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से लगाए गए सस्ते आटे के 7 पॉइंट्स भी गैर फाल हो गए। रेलवे स्टेशन, जॉइंट रोड, आलम चौक समेत दीगर इलाकों में सस्ते आटे के ट्रक ब्लैक में डीलर्स को फरोख्त किए जाने का भी इंकिशाफ हुआ है। इस टाइम में जिस तरह मालूम है कि बलूचिस्तान में एक बोरी भी गंदम सरकारी गोदामों में नहीं है। कल हमारे वजीर खुराक साहब के भी बयानात आए हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि खुदा बलूचिस्तान के लिए हमें फौरी तौर पर 6 से 7 लाख बोरियां दी जाए। महकमे खुराक और फ्लोर मिल मालिकान ने वजीर आजम से बलूचिस्तान को फौरी तौर पर सरकारी कीमत पर 5 से 6 लाख टन गंदम की फरहमी का मुतालबा किया है और पास्को की जानिब से जरूरत के मुताबिक गंदम फराहम न होने की सूरत में गंदम के बदतरीन बहरान का खदशा जाहिर किया है। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। अहम खबर ये है, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर एयरपोर्ट के आउटसोर्स प्लान तैयार। वजीर आजम की हिदायत पर सिविल एविएशन ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी। बैनुल अक़वामी जरीदों में रवा माह टेंडर्स के इजरा का फैसला। दोस्त मुमालिक सऊदी अरब, UAE, कतर, चीन और तुर्की की कंपनीज को तरजीही बुनियादों पर मदऊ किया जाएगा। आउटसोर्स से सालाना 250 से 300 मिलियन डॉलर हासिल होंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज, पार्किंग, स्टोरेज, कार्गो हैंडलिंग, सफाई के शोबे आउटसोर्स किए जाएंगे, जबकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के शोबे सिविल एविएशन के पास ही रहेंगे। सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब पहुंच गए। रियाद पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फैमिली के साथ प्राइवेट तैयारे में रियाद पहुंचे, जहां उन्हें एक शानदार होटल में ठहराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुर्तगाली फुटबॉलर आज एक बड़ी तकरीब में सऊदी क्लब अल नसर के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। रियाद में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खुशामदीद कहने के लिए बिल बोर्ड्स लगाए गए, जबकि मद्दाह इस मौके पर पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुआविनीन को भी साथ। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।